Do you think time and distance problems are difficult? Actually, it's not. It's very interesting, just we need to understand the concept. Today we'll see different problems based on relative speed, modes and streams. Okay, let's start. Our topic is time, speed and distance. Speed is equal to distance upon time. Okay, so distance will be equal to speed multiplied by time. The product of speed and time will be distance. So we can say that speed is directly proportional to distance. It means when distance increases, speed will increase. Distance is directly proportional to time. We can also say that because when time will increase, distance will also increase. And speed is inversely proportional to time. मतलब inversely proportional मतलब when time increases, speed will decrease. और जब भी time decrease करेगा, speed increase करेगी. Okay? Now we'll see conversion factor. 1 kilometer per hour will be equal to 5/18 meter per second. ठीक है, जब भी हमें किसी भी किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो व्हाट विल डू, विल मल्टीप्लाई 5/18, वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होगा. नाउ यू वांट कि कैसे आता है ये मैं देखते हैं, हम देखते हैं. एंड वन मोर थिंग, if 1 kilometer per hour is equal to 5/18 meter per second, so 1 meter per second will be 18 by 5 kilometer per hour होगा. Okay, now we'll see this one. 1 किलोमीटर का मतलब क्या होता है, हाउ कितने मीटर्स होंगे, 1000. सो 1000 मीटर्स पर आवर डिवाइडेड बाई कितने 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 into 60, दैट इज 3600 सेकेंड्स. ठीक है, सो ये इसके इक्वल होगा. ओके, ये इक्वल कैसे होगा, 0000 कैंसिल एंड 5/18 हुआ. सो इट विल बी 5/18 meter per second. ठीक है, a bowler has run up of, okay, distance is 150 meter. ठीक है, given, and speed is given 54, speed is given 54 किलोमीटर पर आवर. तो हम इसको सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे स्पीड को हम मीटर पर सेकेंड में. सो 54 मल्टीप्लाइड बाय 5/18. ओके, करेंगे तो 5/18 3s are 54, तो ये 3 से डिवाइड हो. नाउ 15 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, नाउ डिस्टेंस हमें है पता एंड स्पीड हमने फाइंड आउट कर लिया. सो वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम. व्हाट विल बी द टाइम? सो सी यहाँ पे टाइम के लिए, सो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस इज 150 मीटर एंड स्पीड इज 15 मीटर पर सेकेंड. सो क्या होगा, आंसर विल बी 10 seconds. If there is one distance and two x और y दोनों दो different speed है, if two different speeds are traveling equal distance, then we can find out the average speed. So average speed in that case, average speed will be equal to 2xy divided by x plus y. In this question we have to find out the average speed and two different speeds have given और half distance. अगर कोई distance है जिसके half, अगर ये x है ये भी x है, तो half distance हमने 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल किया एंड सेकेंड हाफ जो है 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल किया. सो यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड. So average speed will be 2 multiplied by ये speed that is 40 and ये speed that is 60 divided by दोनों speed का sum. So 40 plus 60. So क्या होगा, 2 into 40 into 60 divided by 100. Okay, 0 0. So ये क्या होगा, 24 2 है 48. So 48 kilometer per hour speed of a moving body with the respect to another moving body. So there will be two cases. पहला केस क्या होगा, when both are moving in the same direction. ठीक है, when two bodies are moving in the same direction, then the relative speed will be, so relative हम कैसे, relative speed will be x minus y. ठीक है, और अगर
if x is going in this direction and y is going in this direction, if two bodies are moving in opposite direction, then the relative speed will be x plus y. Okay, if two trains of length 200 meters लेंथ की एक ट्रेन है, दूसरी ट्रेन जो है वो है 250 मीटर्स की लेंथ. ओके, नाउ हमें फाइंड आउट करना है दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर जाए, मतलब दिस ट्रेन इज हियर तो दूसरी ट्रेन यहाँ से स्टार्ट हो. ओके, सो दोनों जब क्रॉस कर जाए वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है. तो टोटल विल बी, टोटल डिस्टेंस हमें कितने डिस्टेंस लेने पड़ेंगे, 450 मीटर्स. ओके, नाउ विल सी द स्पीड. जो गिवन स्पीड है टू ट्रेन्स की S1 एंड S2, ये स्पीड क्या है गिवन 18 किलोमीटर पर आवर एंड दूसरी है 36 किलोमीटर पर आवर. सो विल कन्वर्ट इट इनटू मीटर पर सेकेंड बिकॉज इट्स गिवन इन मीटर. सो 18 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 18 क्या होगा, दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. नाउ सेकेंड वन ये क्या होगा, 36 इंटू 5 अपॉन 18 2, सो 10 मीटर पर सेकेंड. तो दोनों ट्रेन्स की जो स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड एंड 10 मीटर पर सेकेंड रेस्पेक्टिवली. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द फर्स्ट क्वेश्चन. वो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ दे मूव इन द सेम डायरेक्शन. सो सेम डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है, सो सी सेम डायरेक्शन के लिए क्या होगा, x माइनस वाई. सो वील फाइंड आउट द रिलेटिव स्पीड इन केस बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन. तो क्या होगा, x प्लस x माइनस वाई, दैट विल बी 10 माइनस 5. तो क्या होगा, 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, एंड सेकेंड केस हम लेते हैं, केस 2. वो क्या है, उसमें रिलेटिव स्पीड हम फाइंड आउट करेंगे व्हेन both are moving in different direction. So that will be x plus y. So 10 plus 5, that will be 15 meter per second. ठीक है, now we have to find out the time. So time is equal to distance by speed. So time is, distance is given 450 meters and speed is given 5 meter per second. ठीक है, so it will be 90 seconds. Now in this case time is equal to same distance upon speed. तो distance is 450 and speed is 15. So ये क्या होगा, 30 seconds. Boats and streams. Okay, if the speed of boat in still water is x kilometer per hour and speed of stream is y kilometer पर आवर, मतलब x इन स्टिल वाटर. हम बोट का जो बोट का एक्चुअल स्पीड है ना वो स्टिल वाटर में वी कैन फाइंड आउट. तो दैट इज x किलोमीटर पर आवर गिवन एंड स्ट्रीम का जो स्पीड है दैट इज y किलोमीटर पर आवर. सो अगर हम डाउन स्ट्रीम में जाएंगे, मतलब डाउन स्ट्रीम इज हम स्ट्रीम के डायरेक्शन में अगर बोट जा रही है दैट विल बी कॉल्ड एज डाउन स्ट्रीम. अगर स्पीड के स्ट्रीम के ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है दैट विल बी कॉल्ड एज अप स्ट्रीम. ओके, so downstream की speed of downstream will be x plus y because stream का जो speed है and boat का speed है दोनों एक ही direction में जा रहे हैं. So we'll add this. And upstream when boat is going against the speed of stream, so that will be called as upstream. तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे because against opposite direction में जा रहे हैं. So x minus y. Now if downstream and upstream is given and you have to find out speed of boat and speed of stream. So how you will find out? So formula is given. Speed of boat will be speed of downstream plus speed upstream divided by 2. उसी तरह से similarly speed of stream will be equal to downstream speed plus minus upstream speed divided by 2. If the speed downstream speed is given, so s down is given, that is 12 kilometer per hour. Okay, now speed upstream is given, so s up is also given, that is 8 kilometer per hour. Now we have to find out the speed of boat and speed of stream. The speed of boat will be equal to दोनों का sum. So 12 plus 8 divided by 2. तो 20 divided by 2, 10 kilometer per hour. ठीक है. Now speed of stream will be s down. वो क्या है 12 and minus s
upstream in upstream speed. So that is 8 divided by 2. 12 minus 8 is 4 divided by 2 will be 2 kilometer per hour. On travels a certain distance. Okay, एक distance travel करता है जिसका half distance वो क्या करता है, if this is 2x तो ये x distance ये x distance, तो half distance वो बस से travel करता है. ओके, और स्पीड क्या रहेगी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो बस से ट्रैवल कर रहा है. ओके, और बचा हुआ हाफ डिस्टेंस वो ट्रेन से ट्रैवल करता है. एंड बाय द स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल करता है. बट रिटर्न के टाइम दैट पर्सन इज डूइंग, रिटर्न के टाइम डिस्टेंस विल बी क्या है 2x डिस्टेंस है, और ये स्कूटर से ट्रैवल करता है, स्कूटर. ओके, और ये डिस्टेंस का स्पीड क्या रहेगा 52 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करता है. ओके फाइन. सो लेट द टोटल डिस्टेंस इज 4x. ओके, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी. ओके, तो टाइम टेकन हमें फाइंड आउट करना पड़ता, तो टोटल टाइम विल बी, टोटल टाइम कितना होगा, सो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड x अपॉन 40 प्लस ये स्पीड x अपॉन 60 प्लस 2x, दिस इज 2x अपॉन 52. ठीक है, तो ये दिस विल बी टोटल टाइम. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द स्पीड. तो स्पीड क्या होगा, टोटल एवरेज स्पीड विल बी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन. So total distance travel is 4x and total time taken will be x upon 40 plus x upon 60 plus 2x upon 52. तो 2 तो कट कर देंगे हम, 26 हो जाएगा. ओके, सो नाउ अगर हम x कॉमन ले लें दोनों साइड से तो 4x डिवाइडेड बाई x कॉमन लिया, सो 1 upon 40 प्लस 1 upon 60 प्लस 1 upon 26. ठीक है, x कट कर दिया. नाउ द वैल्यू विल बी 4 upon 1 upon 40 plus 1 upon 60 plus 1 upon 26. तो वैल्यू क्या होगा इसका 49.92 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस A and B is 600 किलोमीटर्स. ठीक है, नाउ एक ट्रेन A पॉइंट से स्टार्ट होती है एंड 1 आवर चलती है, देन द सेकेंड ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम B. सो 1 आवर में दिस ट्रेन विल कवर 54 किलोमीटर से कवर कर लेगी, बिकॉज द ट्रेन की जो स्पीड है दैट इज 54 किलोमीटर पर आवर. ओके, ठीक है, तो ये 1 आवर में 54 किलोमीटर कवर कर लेगी, तो वो ये पॉइंट पे पहुंचेगी जहाँ से दिस विल स्टार्ट. तो बोथ ट्रेन विल स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट एट द सेम टाइम when this train reached here. So this is going by 54 किलोमीटर पर आवर और ये चल रही है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. बट डिस्टेंस जो इन्हें, सो एट व्हाट पॉइंट दे विल मीट ये फाइंड आउट करना है. सो डिस्टेंस तो 54 तो ये ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अब जो दोनों को साथ में ट्रेन ट्रैवल करे इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, सो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, दिस डिस्टेंस इज 600 माइनस 54. तो 600 minus 54 is 546 किलोमीटर बचे हैं. So they have to travel, both are going in opposite direction. Now, तो relative speed will be, both are going in opposite direction, so it will be, we have to add it. It will be 120 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो relative speed ये हुई. Now we have to find out the time taken. तो टाइम कितना, टाइम टेकन क्या होगा 546 किलोमीटर्स they have to cover and speed is given 120. Okay, so it will be time will be 4.55 hours. Okay, तो 4.55 आवर्स कवर करेंगे. सो नाउ विल टेक दिस ट्रेन, ये 54 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, तो कितने डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, डिस्टेंस ट्रैवल बाय ट्रेन जो A से चल रही है. ओके, सो 4.55 डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम इनटू स्पीड इज 120. ओके, सो स्पीड ये जो 54,
सॉरी 54 की स्पीड से चल रहे हैं, तो 54 की स्पीड से एंड द टाइम टेकन इज 4.55 आवर्स. सो इट विल कवर द डिस्टेंस 299.7 किलोमीटर्स. ओके, सो जब ये ट्रेन 299.7, मान लो कि ये पोजीशन इज दिस इज 299.7 किलोमीटर्स यहाँ से. सो प्लस 54, सो टोटल डिस्टेंस यहाँ से जो होगा दैट विल बी 54 प्लस 299, दैट इज 353.7. 3 persons A, B and C, उन तीनों की स्पीड जो है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर एंड 50 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, दे आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट और वो एक रोटेशन कर रहे हैं, मीन्स रोटेशनल एक 100 किलोमीटर का एक ट्रैक है. सो देयर इज वन ट्रैक ऑफ 100 किलोमीटर एंड दे हैव स्टार्टेड एट द सेम पॉइंट. यहाँ से A, B एंड C तीनों ने स्टार्ट किया रोटेशन. ओके, सो डिफरेंट स्पीड्स हैं तीनों के. सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट कौन से ऐसे पॉइंट पे दे विल मीट फर्स्ट. सबसे पहले ये लोग कब मिलेंगे, कितनी देर पे मिलेंगे. सो दैट यू हैव टू फाइंड आउट. So first of all we will find out the rotation, the time to cover one rotation by A. A जो है वो one rotation कितने देर में cover करेगा, उसकी speed जो total distance is 100 किलोमीटर and उसकी speed is 20. So time is distance by speed. So 5, वो total एक round मारेगा 5 hours में. Okay. Similarly जो time to cover one rotation by B कितने देर में करेगा 25. सो वो 4 आवर्स में 1 रोटेशन करेगा. ना C को कितना टाइम लगेगा, 100 बाई C का जो है दैट इज 50 किलोमीटर्स पर आवर. सो ये होगा 2 आवर्स. सो C विल कवर इन 2 आवर्स. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम टू मीट. ये तीनों जो मीट करेंगे, टाइम टू मीट, वो टाइम विल बी the LCM of 5, 4 and 2. ठीक है, 5, 4 and 2, तो क्या होगा LCM 20 होता है. तो 20 आवर ट्रेन रनिंग एट यूनिफॉर्म स्पीड, एक ट्रेन जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है x किलोमीटर पर आवर, क्रॉसेस 2 वुमेन ओके इन ऑपोजिट डायरेक्शन. तो 2 वुमेन को क्रॉस करती है वो ट्रेन. ओके, जो ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रही है. तो ये जो इन दोनों की ये 2.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है और इसको क्रॉस किया 45 सेकेंड्स में. ओके, एंड ये जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है एंड इसने क्रॉस किया कितने सेकेंड्स में क्रॉस किया इसने 36 सेकेंड्स में क्रॉस किया. ओके, नाउ यू हैव टू फाइंड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ हमें वी शुड रिमेंबर. सो स्पीड वी हैव टू फाइंड आउट. तो स्पीड ऑफ S is directly proportional, inversely proportional to time. ठीक है, सो अगर हम S1 by S2 लिखते हैं, कैन वी राइट 1/T1 डिवाइडेड बाई 1/T2. सो दिस विल बी देन S1 डिवाइडेड बाई S2 विल बी इक्वल टू T2 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1. सो S1 हमें क्या मिलेगा, S1 स्पीड ऑफ फर्स्ट केस के लिए हमें स्पीड, ये ट्रेन इसको कितने देर में क्रॉस करेगी, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं. सो वी हैव टू ऐड इट. सो x प्लस पहले इसको लेते हैं 2.4. ठीक है, डिवाइडेड बाई x प्लस 6 किलोमीटर. नाउ T2 हमें पहले लेना है, तो 2.4 का ये है. सो ये दिस इज T1. So now first of all we have to write out 36 seconds by 45 seconds. Now हमें ये सारे find out 4 divided by 5. So 5 into x plus 2.4 is equal to 4 into x plus 6. So 5x plus 12 is equal to 4x plus 24. So ये क्या होगा, x will be equal to 12. I hope
hope you understood the concept. For any query, any doubt, please comment. Do like, share and subscribe my channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you.